ایران کے ساتھ بہت اچھی بات چیت جاری ہے۔ ایران آبِ ہرمز بند کرنا چاہتا ہے لیکن امریکہ اجازت نہیں دے گا۔ ایران گزشتہ 47 سال سے ایسا ہی کرتا آیا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایران کے ساتھ ہمارا لین دین 100% مکمل نہیں ہو جاتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ ایران کی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ کچھ طاقتیں ایران کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ ہماری فوج سرحدوں کی بہادری کے ساتھ حفاظت کر رہی ہے۔ فوج قوم کے بیٹے کی مانند ہے جو مقدس سرزمین میں لیتی ہے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا ایرانی فوج کی سالگرہ کے موقع پر سوشل میڈیا پر بیان۔ ایرانی اسپیکر قالیباف کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا عندیہ۔ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اب بھی بہت فاصلہ ہے۔ امریکہ کا ناکہ بندی کا اعلان ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ دشمن سمجھتا تھا ایران 2 سے 3 روز میں ہتھیار ڈال دے گا۔ وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا تو وہ ناکام ہو گیا۔ ایران کی جنگی ٹیکنالوجی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مگر دشمن بات ضرور سمجھ گیا ہوگا۔ سربراہ ایرانی مذاکراتی وفد اور اسپیکر پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد باقر قالیباف۔ ایران اور امریکہ کے مشترکہ فریم ورک پر متفق ہونے تک دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کی تاریخ نہیں دی جا سکتی۔ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی تھی تاہم امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات کے باعث سمجھوتہ نہ ہو سکا۔ عالمی قوانین کے تحت ایران کے تمام حقوق کا احترام ناگزیر ہے۔ دنیا کے لیے ایک اور ایران کے لیے دوسرا قانون قابل قبول نہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے کی میڈیا سے گفتگو۔ ایران کی پاسدارانہ انقلاب نے 2 بھارتی تیل بردار بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے سے روک دیا۔ جہازوں میں ایک VLCC سپر ٹینکر بھی شامل۔ جہازوں پر مجموعی طور پر 20 لاکھ بیرل عراقی تیل موجود۔ عرب میڈیا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے بعد 23 جہازوں کو واپس جانے کی ہدایات۔ امریکی فورسز کی جانب سے ناکہ بندی اب بھی جاری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں ملاقات۔ کامیاب سہ ملکی دورے پر وزیر داخلہ کی وزیر اعظم کو مبارکباد۔ وزیر داخلہ نے موجودہ صورتحال اور حالیہ دوروں پر بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ اسلام آباد سے روٹ ٹو مکہ کی پہلی حج پرواز 270 عازمین حج کو لے کر مدینہ منورہ روانہ۔ وفاقی وزیر سردار یوسف اور سربراہ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ روٹ ٹو مکہ منصوبہ انقلابی قدم ہے۔ سعودی حکومت کے تعاون سے حج انتظامات کو بروقت مکمل کیا گیا۔ رواں سال 1,19,000 سرکاری حجاج کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ وفاقی وزیر سردار یوسف کا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی خدمات کو خراج تحسین۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بھی حج پروازوں کا آغاز۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے سیالکوٹ سے جانے والی پہلی پرواز کے 157 عازمین حج کو الوداع کیا۔ حج ہمارے دین کا اہم ترین جزو ہے جس کی ادائیگی بڑی سعادت ہے۔ حکومت کی جانب سے عازمین حج کے لیے مثالی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ عازمین حج بہترین طرز عمل سے پاکستان کی نمائندگی کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف۔ رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا آخری روز 4 کروڑ 45 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل۔ بچوں کو وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ انسداد پولیو مہم پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت منعقد کی جا رہی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو اور محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر۔ مری کے علاقے کوٹلی ستیہ میں اسکائی گلاس برج پروجیکٹ کی اصولی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ مری میں لینڈ سلائیڈنگ کے سدباب کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ اجلاس میں مری تحفظ و بحالی پلان پر پیش رفت اور مری میں 3 نئے پارکس کے قیام کے پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا۔ ملک بھر میں لاکھوں ایکڑ غیر آباد زمین کو قابل کاشت بنانے کے اقدامات تیزی سے جاری۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے انقلابی منصوبے کا آغاز۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی منصوبے میں سرگرم۔ منصوبے کے تحت 17,000 ایکڑ رقبہ حاصل کر کے زراعت کو وسعت دی گئی اور مقامی سطح پر روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے گئے۔
खलीजी जंग में मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी, भारत की नाम निहाद स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी पर सवाल। पाकिस्तान अपनी मुतवाजन हिकमत अमली और अमरीका ईरान जंग में कामयाब सालिसी से आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बन गया। ईरान के मामले पर भारत की गैर वाज़ेह खारजा पॉलिसी सख्त तनकीद की जद में। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान का अहम किरदार, भारत की सिफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। एशिया टाइम्स। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी और मुनशियात की स्मगलिंग खित्ते के लिए संगीन चैलेंज। आलमी जरीदा अफगान सरजमीन से सरहद पार बढ़ती हुई गैर कानूनी सरगर्मियों का सबूत सामने ले आया। किर्गिस्तान के दी टाइम्स ऑफ सेंट्रल एशिया के मुताबिक ताजिक सिक्योरिटी एहलकारों ने अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान सरहद पार करने वाले 2 अफगान मुनशियात स्मगलर्स को हलाक कर दिया। अफगान जराइम पेशा नासिर की दरअंदाजी इस बात का सबूत है कि तालिबान रजीम इन मुजरिमाना सरगर्मियों में बराबर की शरीक है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के 28वें मैच में कराची किंग्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। 29वां मैच पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। और शॉर्ट बॉल इसको पुल किया है, फील्डर है और कैच उठ गया। PSL 11 में रावलपिंडीज को मुसलसल 7वीं शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडीज को 32 रन से हरा दिया। रावलपिंडीज पहले ही प्लेऑफ मरहले की दौड़ से बाहर। PSL के मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। एक और बड़ा शॉट, एक और छक्का। PSL 11 का आधे से जायद सफर तय, 27 मैचेस मुकम्मल। पेशावर ज़ल्मी 13 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर बराजमान। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मैराथन और साइकिल रेस। मैराथन में मोहम्मद अख्तर बर्क रफ्तार रहे। साइकिलिंग में कराची के अली अलियास फातेह। खवातीन मैराथन में महनूर, साइकिलिंग में जैनब ने मैदान मार लिया। व्हील चेयर रेस में अहमद यार ने पहली पोजीशन समेटी। Front of him, Sheshko goes past Caicedo. Sheshko squares this up to Bruno Fernandes. Fernandes going to try and feed. Right hand side gets the left-footed cross in towards the back post. Dangerous one off the crossbar again. और टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के लिए खजानों के मुंह खोल दिए गए। इंतजामिया ने इवेंट की इनामी रकम में 9.5% का इजाफा कर दिया। टूर्नामेंट में मर्द और खवातीन सिंगल्स फातिहीन को बराबर इनामी रकम मिलेगी। डबल विनर्स के इनाम में भी इजाफा। इब्तदाई राउंड में बाहर होने वाले भी जेबें भर सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगी रुमैसा कुरैशी। खबरनामे का आगाज करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत जारी है, ताहम अमरीका ईरान को अपनाए हुर्मुज़ के मामले पर ब्लैकमेल नहीं करने देगा। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान आबना हुर्मुज़ को बंद करना चाहता है, लेकिन अमरीका इजाजत नहीं देगा कि वो हमें ब्लैकमेल करे। उन्होंने कहा कि ईरान गुज़श्ता 47 साल से ऐसा ही करता आया है। ट्रंप ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ हमारा लेन देन मुकम्मल नहीं हो जाता। अमरीकी सदर के मुताबिक स्पेन की हालत देखकर अफसोस होता है। स्पेन की मईशत कमजोर हो चुकी है, वो नेटो में भी हिस्सा नहीं डालते। उन्होंने मजीद कहा कि तिब्बी शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। अद्वियात की कीमतों में 50 से 80% तक कमी हुई है। अमरीका में मनशियात की स्मगलिंग में कमी आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने कहा है कि ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी फौज की सालगिरह के मौके पर अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि हमारी फौज सरहदों की बहादुरी के साथ हिफाजत कर रही है। फौज कौम के बेटे की मानत है जो मुकद्दस सरजमीन में सांस लेती है। उन्होंने खबरदार किया कि कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं, ताहम पूरी कौम पूरी तरह से मुत्तहिद है। सरबराह ईरानी मुज़ाकराती वफ़द और स्पीकर पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ ने कहा कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ़्त जारी है,
लेकिन अब भी बहुत फासला है। एक इंटरव्यू में बाकर कालिबाफ ने बताया है कि अमेरिका का नाकाबंदी का ऐलान एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। उन्होंने कहा कि दुश्मन समझता था ईरान 2 से 3 रोज में हथियार डाल देगा, वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो वो नाकाम हो गया। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी की तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर दुश्मन बात जरूर समझ गया होगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन समझता था ईरान भी वेनेजुएला जैसा होगा। अमेरिका ने नेटो को शरीक करने की कोशिश की और उसमें भी किसी ने साथ नहीं दिया। सरबराह ईरानी मुज़ाकराती वफ़द ने कहा कि जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन्स निशाना बनाए। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं। डॉक्टर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने खबरदार किया कि अमरीकी माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़ें। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। ईरानी स्पीकर ने कहा कि मैं ये बात अमरीकी वफ्द को वाज़ेह तौर पर बता चुका हूं। उन्होंने कहा कि ईरान ने आर्जी जंगबंदी इसलिए कबूल की ताकि अमरीका को अपने मुतालिबात पूरे करने का मौका दिया जा सके, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी इसलिए कबूल की क्योंकि मैदान जंग में कामयाबी ईरान को हासिल हुई थी। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर अमरीका पर एतमाद नहीं करता और मुज़ाकरात को जिद्दोजहद का एक तरीका करार दिया है। ईरान बैक वक्त सिफारतकारी, फौजी ताकत और अवामी हिमायत तीनों महाजों पर काम कर रहा है। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर ने वाज़ेह किया कि ईरान मुस्तकिल अमन चाहता है ताकि जंग और जंगबंदी के चक्कर को खत्म किया जा सके, लेकिन इसके लिए जमानत जरूरी है। और आबना हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार, भारतीय तेल बरदार जहाज़ों को गुजरने से रोक दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ के करीब भारत के 2 तेल बरदार बहरी जहाज़ों को गुजरने से रोक दिया है। मुतासरा जहाज़ों में एक VLCC सुपर टैंकर भी शामिल है। इन जहाज़ों पर मजमूई तौर पर तकरीबन 20 लाख बैरल इराकी तेल मौजूद है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि आबना हुर्मुज़ के करीब नाकाबंदी के बाद 23 जहाज़ों को वापस जाने की हिदायत दी गई हैं। एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फोर्सेस की जानिब से 13 अप्रैल को शुरू होने वाली नाकाबंदी अब भी नाफिजुल अमल है। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि वो जारी अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में अपना हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर चुका है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, आबनाए हुर्मुज़ की पेशरफ्त और लेबनान में जंगबंदी को बरकरार रखने समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर भी जोर दिया कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सिफारतकारी निहायत अहम है। ईरान ने मुल्क के 6 एयरपोर्ट्स खोलकर मुल्क की फ़ज़ाई हदूद को 50 दिन बाद जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी एयरलाइंस एसोसिएशन का कहना है कि मकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 7 बजे से ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद और मुतादिद एयरपोर्ट्स को दोबारा खोल दिया है। दोबारा फ़ाल किए जाने वाले हवाई अड्डों में तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा मशहद, बेरजन, गुरकान और जहादान के हवाई अड्डे भी शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी प्रवासों को मशरक़ी इलाके से गुजरने की इजाज़त दी गई है। हुकाम के मुताबिक ईरान के तमाम एयरपोर्ट्स की परवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने कामयाब से मुल्की दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरे पर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुनी ने डेरा गाजी खान में साबिक गवर्नर पंजाब जुल्फ़िकार अली खान खोसो के साले सवाब के लिए कुरान ख़ानी की तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन सेनेट ने मरहूम की सियासी खिदमात, उसूल पसंदी और इलाके की तरक्की के लिए उनकी काविशों को खराज तहसीन पेश किया। दुआया तकरीब में सियासी और समाजी रहनुमाओं और मरहूम के अजीज़ व अक़ारिब समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आपको आगाह करेंगे, इस्लामाबाद से रूट टू मक्का की पहली हज परवाज 270 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के सरबराह मेजर जनरल डॉक्टर साहिल बिन साद अल मिराबा ने आज़मीन हज को रुखसत किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और तावन पर खादम हरमैन शरीफैन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी वज़ीर हज उमरा डॉक्टर तौफीक बिन रबिया और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हज इंतज़ामात मज़ीद बेहतर बनाए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताउन से हज इंतज़ामात मुकम्मल हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह आज़मीन को सहूलत और बावकार सफ़र की फराहमी है। रवां साल 1,19,000 सरकारी हजाज के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। उन्होंने रूट टू मक्का मनसूबे को आज़मीन के लिए इनकलाबी सहूलत करार देते हुए बताया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही सऊदी इमिग्रेशन और सफरी मराहिल मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस सहूलत से आज़मीन बराह रास्त अपनी रिहाइशगाहों तक पहुँच सकेंगे। उन्होंने कहा कि कल आज़मीन का
80% रूट टू मक्का मंसूबा से मुस्तफीद होगा, जिसमें मजमूई तौर पर 95,800 पाकिस्तानी आज़मीन इस जदीद सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हर 128 आज़मीन के साथ तरबियत याफ्ता नाजिम मुकर्रर किया गया। उन्होंने कहा कि मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में आज़मीन की मुकम्मल रहनुमाई यकीनी बनाई जाएगी। हर हाजी को सऊदी अरब पहुँचते ही मुफ्त सऊदी सिम के साथ 40 GB इंटरनेट सहूलत भी दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम सरकारी हज्जाज को मदीना में मरकज़ ये के करीब रिहाइश दी जाएगी और उन्होंने सऊदी क़यादत का आज़मीन हज की खिदमत पर खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज़मीन हज पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। इस्लामाबाद से रवाना होने वाले पाकिस्तानी आज़मीन हज ने भी हुकूमत पाकिस्तान की काविशों पर शुक्रिया अदा किया। सियालकोट एयरपोर्ट पर हज ऑपरेशन के लिए शानदार इंतजाम किए गए, जहां आज़मीन हज को निहायत मुनज़्ज़म और पुरवकार अंदाज में रुखसत किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सियालकोट से इरफान गिल। मुल्क भर की तरह सियालकोट से भी हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। वजीर दिफा हाजा मोहम्मद आसिफ, सूबाई वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत मोहम्मद मंशा लाबाड, वजारत मजहबी अमूर और सियाल इंतजामिया ने अलविदाई तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान हमारी पहचान है। आप लोग दुनिया भर से आए हुए लाखों मुसलमानों के बैनुल-अक़वामी इज्तिमा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, लिहाजा आपने उन्हें पाकिस्तान का एक बावकार और रोशन चेहरा दिखाना है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज को मिसाली सहूलियत फराहम की गई हैं। खाने का बेहतरीन इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। रिहाइश के बेहतरीन, मदीना मुनव्वरा में हमारे तमाम हुज्जाज कराम को मरकज़िया के अंदर रिहाइश दी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी भरपूर कोशिश है, हमारे वज़ीर मजहबी अमूर, हमारे वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर की, कि हुज्जाज कराम को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। इस हज ऑपरेशन में मरहलावार 26 परवाजों के जरिए 5200 आज़मीन हज को हजाज मुक़द्दस रवाना किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से इस बार हुज्जाज इकराम के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए गए हैं, ताकि ये हाजी अपनी यकसुई और दिलजोई के साथ इबादत कर सके। इरफान गुल, पाकिस्तान टेलीविजन, सियालकोट। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आखिरी रोज मुल्क भर में अब तक 4 करोड़ 45 लाख से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी फराहम की जा रही है। नेशनल EOC के मुताबिक मुहिम के दौरान पंजाब में तकरीबन 2 करोड़ 29 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। सिंध में 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 71,55,000 से ज्यादा, जबकि बलोचिस्तान में 25,82,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। इस्लामाबाद में 4,41,000 और गिलगित बल्तिस्तान में 2,92,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी तकरीबन 7,17,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुनक्किद की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी गई है। लाहौर में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि कोटली सतिया में सियाहत के फ़रोग के लिए पंजाब का पहला स्काई ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के तामीराती उमूर के आगाज़ का हदफ 1 माह तक मुकर्रर किया गया है। मरी में लैंडस्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। इजलास में मिड फ्लो डाउन हिल इफेक्ट के सद्देबाब के लिए फौरी इक़दामात पर चिट्टा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, नमल, जीका गली और दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इक़दामात का हुक्म भी दिया गया। इजलास में मरी में 3 नए हॉस्पिटलिटी जोन कायम करने की मंजूरी भी दी गई। मज़ाफ़ाती इलाके शिवाला, सुजो और बरवरी में हॉस्पिटलिटी जोन्स के क़याम, इन जोन्स में निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार होटल्स की तामीर और मरी बहाली प्रोजेक्ट के लिए माहिरीन की टीम तश्कील देने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ को अंगूरी रोड पार्क, MIT पार्क और अरियाड़ी पार्क कोटली सतिया प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बांसरा गली में ज़ूलॉजिकल गार्डन, मरी ज़ूलॉजिकल गार्डन एक्ोजोन, ब्रिज क्रॉसिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ्रेंस रूम कायम किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टाइगर हाउस, बियर हाउस और बर्ड आइवरी बनाई जाएगी। इजलास में सयाहों के लिए चेड़ आहल पर मरी का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ग्लैमिंग पॉड विलेज कायम करने, इंतजाम प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करने और पैराग्लाइडिंग क्लब प्रोजेक्ट की बाकायदा मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास के दौरान कोटली सतिया चेयरलिफ्ट प्रोजेक्ट, पंजाब हाउस, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और दीगर प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जिला मरी में दरिया जेहलुम से बल्क वाटर सप्लाई स्कीम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मुकम्मल करने का हुक्म और पंजाब में पहला फिजिबिलिटी मैनेजमेंट यूनिट कायम करने की उसूली मंजूरी भी दी। इजलास में मरी तहफ़्फ़ुज़ व बहाली प्लान पर पेशरफ्त और मरी में 3 नए पार्क्स के क़याम के प्रोजेक्ट का जायजा भी लिया गया।
नाज़रीन, गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी से कुवैत के कौंसल जनरल सालिम अल हमदान ने कराची में अलविदाई मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और कुवैत के बरादराना ताल्लुकात, बाहिमी ताउन और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराकी अमल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कौंसल जनरल की खिदमात को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुस्तक़बिल में ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा भी किया गया। कौंसल जनरल का कहना था कि कुवैती सरमायाकार सिंध बिलखसूस कराची में सरमायाकारी के वसी मौक़े में दिलचस्पी रखते हैं। इस मौके पर इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। नाज़रीन, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से अपोजिशन लीडर में यूनुस अजीज़ ज़ाहरी की सरबराही में बलोचिस्तान असम्बली के अपोजिशन अराकीन ने मुलाकात की, जिसमें पार्लिमानी उमूर, आइंदा माली साल के बजट और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस बात पर इत्तफाक किया गया कि आइंदा माली साल के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी PSDP की तरजीहात को अवामी ज़रूरियात से हम आहंग किया जाएगा, ताकि तरक्याती मनसूबे हकीकी अवामी तकाज़ों के मुताबिक तरतीब दिए जा सकें। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि ट्रेजरी और अपोजिशन अराकीन दोनों अवाम के मंतखब नुमाइंदे हैं और अवामी मफाद की हर मुस्बत तजवीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान असम्बली पार्लिमानी रिवायात और सूबाई इक़दार का खूबसूरत इम्तजाज है, जहाँ अपोजिशन अराकीन ने हमेशा सब्र व तहम्मुल और आला इखलाकी इक़दार का मुजाहरा किया है। और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए इनकलाबी मंसूबे का आगाज़। मुल्क भर में लाखों एकड़ गैर आबाद ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के इक़दाम तेज़ी से जारी हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। CEO येलो ग्रीन फार्म गुलाम मुस्तफ़ा खानदान समेत पाकिस्तान मुंतकिल होकर जदीद ज़राअत के फ़रोग़ में अमली किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने तवील मुद्दती ज़रई मंसूबे को मुनफरिद और पायदार मौका करार दिया। मकामी किसान मोहम्मद अब्दुल्ला लियाकत ने कहा कि GPI के तहत 17,000 एकड़ रकबा हासिल करके ज़राअत को वुसअत दी गई और मकामी सतह पर रोज़गार के मौक़े भी फराहम किए गए। एग्री मॉल्स के क़याम से बीज, खाद और ज़रई अद्वियात एक ही जगह दस्तयाब होंगे। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर के मुताबिक GPI का ये मंसूबा बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुका है। मंसूबे के तहत जदीद ज़रई मशीनरी और तरीकों को फ़रोग़ देकर रिवायती काश्तकारों को जदीद ज़राअत की जानिब राग़िब किया जा रहा है। नाज़रीन, गर्मी का मौसम आते ही गंदम के खेत सोने जैसे सुनहरी लगने लगते हैं, जो इस बात की अलामत होती है कि फसल अब कटाई के लिए तैयार हो चुकी है। लोधरा में गंदम की कटाई का आगाज़ हो गया है, जिसकी तफसील बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। ज़िला लोधरा गंदम की फसल की काश्त के लिहाज से मुल्क भर में मशहूर है। इस साल ज़िला लोधरा में गंदम की फसल 3,75,000 एकड़ पर काश्त की गई है। ज़िला लोधरा और तीनों तहसीलों में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। गंदम की कटाई के लिए जदीद मशीनरी के साथ रवायती अंदाज में दराती से फसल भी कटाई की जा रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ हर काम में जिद्दत आई है। इसी तरह गंदम की कटाई में अब रैपर और हार्वेस्टर का भी इस्तेमाल बढ़ गया है। गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। हमने भी गंदम की कटाई शुरू कर ली है और इस बार जो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा रेट रखा है, गंदम का 3500 रेट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि गंदम की जो औसत है अच्छी आ रही है। अल्लाह की तरफ से ये करम नवाजी है। माशाल्लाह आज जो है मशीन आपके सामने लगी हुई है, इससे जो है गंदम घर के साल की रोज़ी आ जाएगी। पंजाब हुकूमत और महकमा खुराक ने इस साल ज़िला भर के किसानों से 3,500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम खरीद करेगा। अप्रैल का महीना गंदम की कटाई का महीना होता है और ये दिन किसान के लिए खुशहाली का पैगाम लाता है, क्योंकि अपनी पैदावार का मुआवजा हासिल करके अपने प्रोग्रामों को हतमी शक्ल देते हैं और इनके घरों में मेले जैसा समा होता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में होने वाली बारिशों से गंदम की फसल की कटाई लेट शुरू हुई है, लेकिन किसान दिन रात मेहनत करके गंदम की कटाई में मसरूफ़ हैं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान मुहिम के तहत शेखुपुरा के स्कूल्स कॉलेजेस के तलबा तालिबात भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने स्कूल और कॉलेजेस में पौधे लगा रहे हैं। मोहम्मद इस्लाम गाजी की रिपोर्ट देखिए। इस्लाम ने इंसान को सिर्फ इबादत का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ज़मीन की आबादकारी, पानी की हिफाजत और मखलूक को फ़ायदा देने का भी हुक्म दिया है। दरख्त लगाना इन तमाम पहलुओं को एक साथ पूरा करता है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो माहौलियाती आलूदगी का शिकार हैं। दरख्त ही वो वाहिद ज़रिया है जो माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म कर सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत हर मौसम में शजरकारी का सिलसिला बरकरार रखा हुआ है। एक ओवरऑल जो हमारा थीम है, ग्लोबल वार्मिंग, एक जो चेंजिंग इन्वायरमेंट ट्रेंड्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जो मैडम CM साहबा की डायरेक्शंस हैं, उसके बाद एक हमारी कंटिन्यूस शजरकारी की मुहिम चल रही है जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर पकड़ चुकी है और हम डेली बेसिस पे शजरकारी कर रहे हैं। हमारे फॉरेस्ट नर्सरी में
पौधे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं स्कूल, कॉलेजेस और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लिए। इस मुहिम के दौरान जिला भर के सरकारी तालीमी इदारों के तलबा तालबात भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जिला भर के सरकारी तालीमी इदारों में 55,000 पौधे लगाए जाएंगे। हमारी मैक्सिमम कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो हैं वो कॉलेज में हों ताकि माहौल बेहतर से बेहतर हो। हमारी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए पौधे लगाएं ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिले। मैंने अपने कॉलेज में भी एक पौधा लगाया है और इंशाल्लाह मैं उसकी केयर भी करूंगी और अपने घर में भी मैंने पौधे लगाए हैं। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। खलीजी जंग में मोदी की इजराइल नवाज पॉलिसी, भारत के नाम नहाज स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी पर सवाल। पाकिस्तान अपनी मुतवाजन हिकमत अमली और अमरीका ईरान जंग में कामयाब सालिसी से आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बन गया। बैनुल-अक़वामी जरीदा एशिया टाइम्स के मुताबिक ईरान के मामले पर भारत की गैर वाज़ेह खारजा पॉलिसी सख्त तनकीद की जद में है। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया जबकि भारत की सिफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम की बात की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी मुदाखलत की बजाय राबते और यकीन दहानी तक महदूद रहा। चीन और पाकिस्तान की करीबी शराकतदारी ने खित्ते में भारत की नाम नेहाद अहमियत को शदीद धचका पहुंचाया। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमरीका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। आलमी माहिरीन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की ख्वाहिश में मोदी ने भारत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जनूबी एशिया जैसे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जीत पूरे खित्ते की जीत है। अफगानिस्तान में पनपती दहशतगर्दी और मनशियात की स्मगलिंग खित्ते के लिए संगीन चैलेंज। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से जराइम पेशा नासिर की पुश्त पनाही ने पड़ोसी ममालिक की समाजी और मुआशी सलामती को दाव पर लगा दिया। आलमी जरीदा अफगान सरजमीन से सरहद पार बढ़ती गैर कानूनी सरगर्मियों का एक और सबूत सामने ले आया। किर्गिज़स्तान के महरूफ जरीदे द टाइम्स ऑफ सेंट्रल एशिया के मुताबिक ताजिक सिक्योरिटी एहलकारों ने अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान सरहद पार करने वाले 2 अफगान मनशियात स्मगलर्स को हलाक कर दिया। ताजिक सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक अफगान मनशियात स्मगलरों ने सरहद उबूर करने की कोशिश की थी। ताजिकिस्तान के जिला फरखोर में स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हलाक अफगान स्मगलर से 25 किलो मनशियात भी बरामद कर ली गई। वस्ती एशियाई ममालिक अफगानिस्तान की गैर मुस्तहकम अस्करी, सियासी और मुआशी सूरत हाल को पहले ही खित्ते के लिए तशवीशनाक करार दे चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक पड़ोसी ममालिक में अफगान जराइम पेशा अनासिर की मुसलसल दरअंदाजी इस बात का सबूत है कि तालिबान रजीम इन मुजरमाना सरगर्मियों में बराबर की शरीक है। तालिबान रजीम जराइम पेशा अनासिर और दहशतगर्द गिरोहों को अपनी बका के लिए बतौर स्ट्रेटेजिक एसेट इस्तेमाल कर रही है, जिसका बराह रास्त खुमियाजा पड़ोसी ममालिक भुगत रहे हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन और जेडी वीज़ा सर्विसेज के दरमियान मुआहदा हो गया, जिसका बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने खैर मकदम किया है। इस हवाले से मैनचेस्टर में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का नुमाइंदा पीटीवी न्यूज़ राजा वाजिद से इस हवाले से बात करेंगे। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि द्यामिर की बात कर लेते हैं, जहाँ पर खूबसूरत वादियों और पुरअमन माशरती इक़दार का हामिल एक मुनफरद खित्ता, जहाँ के लोग मोहब्बत, बर्दाश्त और भाईचारे की रोशन मिसाल हैं। लेकिन बदलते हुए हालात में एक ऐसा चैलेंज भी मौजूद है जो किसी भी माशरे के अमन को मुतासर कर सकता है। इसी हवाले से द्यामिर के आवाम की राय से आपको आगाह करेंगे चिल्ला से हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन ख्वारी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला द्यामर बुलंद उबाला पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और पुरअमन माशरती इक़दार का हामिल एक मुनफरद खित्ता है, जहाँ के लोग मोहब्बत, बर्दाश्त और भाईचारे की रोशन मिसाल हैं। लेकिन बदलते हुए हालात में एक ऐसा चैलेंज भी मौजूद है जो किसी भी माशरे के अमन को मुतासर कर सकता है, और वो है पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान एक खूबसूरत इलाका है, यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं, पुरअमन इलाका है। दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए और ख़ास तौर पर इस नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए मुल्क के तमाम इदारे इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। और मैं ये समझता हूँ कि शरअन अक़लन उर्फ़न ये नासूर है और इस नासूर को ख़त्म करना ये सब के ज़िम्मे फ़र्ज़ और वाजिब के दर्जे में है। मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी हैं, हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ शदीद मज़म्मत करते हैं। पोठोहारी खूबसूरत ज़ुबान और ख़ित्ता पोठोहार की सकाफ़त सदियों पुरानी तारीख की हामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की क़यादत में हुकूमत इलाकाई ज़ुबानों के फ़रोग़ के लिए कोशां है। इन ख़यालात का इज़हार पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफ़त शाज़िया रिजवान ने रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में पोठोहार कल्चर डे की मुनासबत से मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब करते हुए किया। तक़रीब में शुरका ने लोक रक़्स, सम्मी, ढोल और शहनाई की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। शादी ब्याह के पोठोहारी लोक गीतों और गायक खादिम अली अरशद के गाने ने मेला लूट लिया। पोठोहारी शहर खानी और मुशायरे ने तक़रीब को 4 चांद लगा दिए।
اسلام آباد میں سوویت عوام کی نسل کشی کے متاثرین کی یاد میں تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھیں گے سعید وزیر کی رپورٹ۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں پاکستان میں روسی سفارت خانے کے زیر اہتمام منعقدہ اس نمائش میں 1941 سے 1945 تک جاری جنگ کے دوران نازیوں اور ان کے اتحادیوں کے ہاتھوں سوویت عوام پر ڈائے گئے مظالم کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے روسی سفیر نے کہا کہ 1941 میں نازی جرمنی کے سوویت یونین پر حملے نے تاریخ کی خونریز ترین جنگوں میں سے ایک کا آغاز کیا، جس میں 2 کروڑ 70 لاکھ سے زائد سوویت شہری جان سے گئے۔ It is related to some historian events and brings us back to the 19th of April of 1943. Soviet Supreme Council of USSR made a relevant decision in this regard. And I would like to express my gratitude of such a huge interest from Pakistani audience. شرکا کا کہنا تھا کہ یہ صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ ایک بڑے انسانی المیہ کی داستان ہے جس سے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کشمیر میں دیکھ لیں، آپ غزہ میں دیکھ لیں، آپ ابھی ایران میں دیکھیں، سویلائزیشنل تھریٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ جینوسائڈ کا جو ایلیمنٹ ہے نا، وہ جو تھریٹ ہے وہ ہیومن کائنڈ کو ہمیشہ سے ہے، اور انفارچونیٹلی وہ جنگ کا حصہ ہوتا ہے۔ جنگیں لڑی تو جاتی ہیں ملکوں کے اپنے فائدے کے لیے، لیکن اس میں جو ہیومن لاس ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب جیسے اس میں 27 ملین پیپل دے ہیو بین کلڈ، اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی جو اس وقت جینوسائڈ ہوئی تھی۔ The photos and documents were presented by 2 leading Russian museums, the Victory Museum and the Russian State Historical Museum. We extend our gratitude to these bodies for supporting our project. And during the atrocities committed by Nazi Germans in the Second World War, over 13.8 civilian Soviet citizens died. تقریب کے اختتام پر شرکا نے نازی مظالم کا شکار ہونے والوں کی یاد میں شمع روشن کی اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ننکانہ صاحب کے قصبہ موڑ کھنڈا میں کنٹری اسکالرشپ ٹیسٹ 2026 کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے 600 سے زائد طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ رپورٹ کریں گے ننکانہ صاحب سے جاوید احمد ماویہ۔ ننکانہ صاحب کے قصبہ موڑ کنڈا میں ہونے والے اسکالرشپ ٹیسٹ میں مختلف سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے 600 سے زیادہ طلباء و طالبات نے حصہ لیا اور مختلف مضامین میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ ٹیسٹ کے انعقاد کا مقصد کم وسائل رکھنے والے ذہین طلباء بالخصوص طالبات کو زندگی میں آگے بڑھنے اور انہیں اپنے خواب شرمندہ تعبیر کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ سینکڑوں کے حساب سے جو طالب علم ہیں وہ یہاں سے فری اسکالرشپ پہ پڑھ کے آج الحمدللہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے اندر بھی فری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ 2 ایئرز کا پلان ہے، جتنے بچوں کو ہم آلموسٹ اسکالرشپ دینے جا رہے ہیں یہ 4 کروڑ روپے کا ہے۔ بہت ساری بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آگے پڑھنے کے لیے اپرچونٹی نہیں ملتی، ہم تو 40 ہمارے پاس ایسی بیٹیاں ہوگی جو فری ایجوکیشن حاصل کر سکیں گی۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے خواب پورے نہیں کر سکتے، تو اس طرح کے اسکالرشپ ان کو ملیں گے تو فری تعلیم حاصل کر کے وہ اپنے خواب جو پورے کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا انوائرمنٹ اسپیشلی گرلز اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، ان کو ایک بہت اچھی اپرچونٹی ادھر مل رہی ہے فری ایجوکیشن کی۔ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ فائنینشلی ان کی اسٹڈی کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ لاسٹ ٹائم میں نے یہاں کا انٹری ٹیسٹ دیا تھا اور میری الحمدللہ اللہ کے شکر ہے کہ میری اسکالرشپ لگی اور میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے اس اسکالرشپ پہ بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور میری بہت زیادہ مالی مدد بھی ہوئی اور میرے والدین کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوا۔ اسکالرشپ ٹیسٹ میں پہلی 40 پوزیشن حاصل کرنے والے امیدواروں کو مفت تعلیم اور نقد انعامات بھی دیے جائیں گے۔ جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن اور جیری ویزا سروسز کے درمیان معاہدہ ہو گیا، جس کا برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں نے خوب خیر مقدم کیا۔ اس حوالے سے منچسٹر میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا نمائندوں PTV نیوز راجہ واجد سے انہوں نے بات کی اور اظہار خیال کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، پاکستان ہائی کمیشن لنڈن اور جیری ویزا سروسز کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا ہے اس کے متعلق لوگوں سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ ایک تو اپوائنٹمنٹ کی ہوتی ہے، دوسرا پھر ایمبیسی میں جانا، کونسلیٹ میں وہ ساری جو سہولتیں وہ لینا، تو ان پرابلم سے بچنے کے لیے میرے خیال میں پوری دنیا میں یہ ایک سسٹم اچھا چل رہا ہے اور یہ اگر اچھے طریقے سے چلے، بات وہی ہے کہ جب یہ سسٹم سٹارٹ ہوگا تو اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ انسٹیٹیو اچھا ہے اور یہ ہونا چاہیے، یہ میرے خیال میں پبلک کے لیے اچھا رہے گا ایکسپیرینس۔ It's a good idea. They do good a job because our people need
lots of support. They need extra support than most people. تو جیری کا جو ہوا ہے یہ کسی زمانے میں پہلے بھی تھا, اس کے بعد ختم ہو گیا تھا. اب دوبارہ انہوں نے کیا ہے کہ جہاں جہاں بیسیاں نہیں ہیں وہاں ان کے آفس کھلیں گے. اور ہمارے جو آفس ہیں جیسے جہاں لنڈن کے ہیں, بریڈ فورڈ کے ہیں, مانچسٹر کے, وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, اچھا اقدام ہے. I think it's a wonderful decision by the High Commission and the Government of Pakistan working in collaboration with Jerry, because Jerry works with many countries. And I think if we stop some of these backlogs and make the process a little bit faster, it's beneficial to everybody concerned. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਰਡਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. جی ہاں بالکل, جیسے کہ آپ نے سنا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ اور پاکستان ہائی کمیشن لنڈن کا ایک نہایت ہی اچھا اقدام ہے. اب جب یہ سروسز لوگوں کو ملیں گی اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس کے ریزلٹس کیا ہے. راجہ واجد, پی ٹی وی نیوز, مانچسٹر. آئی جی اسلام آباد کے احکامات پر جرائم پیشہ عناصر اور غیر مقیم افراد کے خلاف اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر مشترکہ گرینڈ کامبنگ سرچ آپریشنز جاری ہیں. ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق سال 2026 کے پہلی سہ ماہی میں 597 کومبنگ سرچ آپریشنز کیے گئے. اس دوران 362 افغانیوں سمیت 3383 مشکوک افراد, 109 گاڑیاں اور 1751 موٹر سائیکلز کو مزید جانچ پڑتال کے لیے تھانے منتقل کیا گیا. دوران آپریشن غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث ملزمان سے کلاشنکوف سمیت مختلف ہتھیار بھی برآمد کیے گئے. منشیات فروشی میں ملوث ملزمان سے چرس, ہیروئن, آئس اور شراب بھی برآمد کی گئی. ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین, محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور میدانی علاقوں میں گرم رہنے کی توقع ہے. تاہم بالائی خیبر پختونخوا, خطہ پوٹوہار, کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا. تاہم خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, بالائی, وسطی پنجاب, کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی. گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی 42, شہید بے نظیر آباد 41, حیدرآباد اور چھور میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ملک بھر میں تیز ہواؤں, آندھی, گرج چمک کے ساتھ مزید بارش, متعدد مقامات پر ژالہ باری کا الرٹ جاری. بلوچستان, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے. ادھر اسلام آباد, راولپنڈی, اٹک, جہلم, پشاور, ڈی آئی خان, کوئٹہ, بارکھان, مانسیرا, سکردو, ہنزا, گلگت, مظفر آباد, باغ, راولاکوٹ سمیت متعدد علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ جبکہ مقامی ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس دوران ژالہ باری, تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. تیز ہواؤں, آندھی, ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کے باعث کمزور تنصیبات کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے. ناظرین, ضلع استور کے بالائی علاقوں میں گزشتہ 3 روز سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ ہیڈ کوارٹر استور اور ملحقہ علاقوں میں مسلسل بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے. موسم کی اس اچانک تبدیلی کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں. شدید بارش اور برف باری نے کھیتی باڑی کو منفی اثرات مرتب کیے ہیں, جس سے کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا ہے.
खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। इवेंट के 28वें मैच में कराची किंग्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इवेंट का 29वां मैच शाम 7 बजे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। PSL 11 में रावलपिंडीज को मुसलसल 7वीं शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडीज को 32 रन से हरा दिया। नेशनल बैंक स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। ओपनर्स फखर जमान और मोहम्मद फारूक ने टीम को 121 रन का आगाज दिया। मोहम्मद फारूक ने 41 गेंदों पर 63 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 5 चौके शामिल थे। फखर जमान ने 54 गेंदों पर 84 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 1 छक्का और 11 चौके लगाए। अब्दुल्ला शफीक ने 26 और आसिफ अली ने नॉट आउट 14 रन जोड़े। रावलपिंडीज की जानिब से मोहम्मद आमिर और रजाउल्ला ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। अब्दुल्ला शफीक का शहाना स्ट्रोक, तमाम ही बेसिस कवर हैं और जवाब में रावलपिंडीज की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 178 रन बना सकी। रावलपिंडीज के सिर्फ 3 बल्लेबाज डबल फिगर तक पहुंच पाए। यासिर खान ने 58, डेरिल मिचेल ने 11 और साद मसूद ने 54 रन बनाए। कलंदर्स की तरफ से हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी और उसामा मीर के हिस्से में 2-2 विकेटें आई। PSL 11 के तमाम मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि हम हारने की आदत 5 साल पहले छोड़ चुके हैं। अब 3 बार ट्रॉफी जीतकर फतह को आदत बना लिया है। रावलपिंडीज के खिलाफ कामयाबी के बाद हारिस रऊफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रावलपिंडीज के खिलाफ मैच में बैटर्स ने बड़ा स्कोर किया तो हमारे लिए भी इसका दिफा करना आसान रहा। विकेट आसान नहीं थी, सारा क्रेडिट हमारे बैटर्स को जाता है। उन्होंने हम इस पोजीशन में हैं कि अब कोई मैच नहीं हारना। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज रावलपिंडीज के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मुसलसल 7 मैचेस में शिकस्त और प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर होने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। लाहौर कलंदर्स के हाथों शिकस्त के बाद रावलपिंडीज के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसलिए टीम का रिजल्ट ऐसा था। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला है। मैं मानता हूँ कि मेरी नाकामी है, आगे मेरे हाथ में बस मेहनत करना है। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि लीडर को टीम के रिजल्ट से ना पहचाने। आप बतौर कप्तान कोशिश कर सकते हैं, लेकिन गलतियां हों तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आधे से ज़्यादा सफ़र तय हो चुका है। 44 में से 27 मैच खेले जा चुके हैं। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी सर फहरिस्त है और उसने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पेशावर ज़ल्मी 7 मैचेस में 6 फतुहात समेट चुकी है, जबकि एक मैच बारिश की नज़र हुआ। वो 13 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बराजमान है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। तीसरे नंबर पर मुल्तान सुल्तान हैं, जिन्होंने 6 मैचेस में से 4 में कामयाबी हासिल करके 8 पॉइंट्स हासिल किए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स, हैदराबाद किंग्समैन, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के 6-6 पॉइंट्स हैं। ताहम बेहतर रन रेट की बुनियाद पर कोयटा ग्लैडिएटर्स चौथे, हैदराबाद किंग्समैन 5वें, लाहौर कलंदर्स 6ठे और कराची किंग्स 7वें नंबर पर हैं। आखिरी पोजीशन पर रावलपिंडीज की टीम है, जो अब तक एक भी मैच जीतने में नाकाम रही है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की खवातीन टीमों के दरमियान व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, श्रीलंका की नमिला पेरेरा तमाम 6 मैचों में ऑन फील्ड एम्पायर होंगी। जुल्फ़िकार जान, तारिक रशीद, सोलेह इम्तियाज़, फैसल आफरीदी और नासिर हुसैन भी एम्पायरिंग के फ़राइज़ निभाएंगे। कामरान चौधरी वनडे इंटरनेशनल सीरीज़, जबकि अली नकवी T20 सीरीज़ के मैच रेफरी होंगे। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में 6 मैचों की सीरीज़ 4 से 15 मई तक खेली जाएगी। सीरीज में 3 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 इंटरनेशनल शामिल हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब नेशनल मैराथन मोहम्मद अख्तर ने जीत ली। साइकिलिंग में कराची के अली इलियास फाते रहे। खवातीन मैराथन में महनूर, साइकिलिंग में ज़ैनब ने मैदान मार लिया। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मैराथन और साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर खेल मलिक
फैसल अयूब खोकर ने भी साइकिल रेस में हिस्सा लिया। 21 किलोमीटर मर्दों की मैराथन में मोहम्मद अख्तर ने पहली पोजीशन, मोहम्मद आमिर ने दूसरी, जबकि मोहम्मद इरफान ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। 5 किलोमीटर विमेन मैराथन में महानूर पहले नंबर पर, नाजिया एहसान दूसरे, जबकि मारिया ने तीसरे नंबर पर आईं। 21 किलोमीटर मर्दों की साइकिलिंग में कराची के अली इलियास ने मैदान मार लिया। लाहौर के आकिब शाह दूसरे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के सनाउल्लाह ने तीसरे नंबर पर मौजूद रहे। 5 किलोमीटर विमेन साइकिलिंग में कराची की जैनब पहले, अनीसा दूसरे, जबकि कराची ही की राबिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की। व्हील चेयर रेस में अहमद यार ने पहली पोजीशन हासिल की, जाहिद नज़ीर दूसरे, जबकि नवाज राशिद तीसरे नंबर पर रहे। सूबाई वजीर खेल ने जीतने वाले एथलीट्स में 38 लाख से ज़ायद के इनामात तकसीम किए। नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए हुकूमत पंजाब के तहत डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहावलपुर के ज़ेर एहतिमाम फाइट लीग के पहले सीजन का कामयाब इनकाद किया गया। ड्रंक स्टेडियम में होने वाले इवेंट में खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब समेत मुल्क भर से नामवर फाइटर्स ने शिरकत की। सनसनीखेज मुकाबलों से शायकीन खेल खूब महसूस हुए। इंतजामिया के मुताबिक ये इवेंट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर के विजन का हिस्सा है, जिसका मकसद नौजवानों को खेलों के बेहतर मौके फराहम करना है। हुकाम का कहना है कि बहावलपुर फाइट लीग को हर साल बाकायदगी से मुनक्किद किया जाएगा, जबकि आइंदा बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की शिरकत भी मुतवक्की है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की अहम कामयाबी चेल्सी को शिकस्त देकर टॉप 4 में शामिल हो गई। लंदन में खेले गए मैच में मानफा हिकमत अमली के बाइस वो गोल करने में नाकाम रही। इस कामयाबी के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 पॉइंट्स के इजाफे के साथ चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करने के करीब पहुंच गई है। फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी हैं, ताहम सिक्योरिटी खदशात से निपटने के लिए भी भरपूर तैयारी की जा रही है। मेगा इवेंट से कबल मेक्सिको पुलिस ने कोलंबियन यूनिट के साथ मुश्तरका इंसदादी दहशतगर्दी मशक की। मेक्सिको में फुटबॉल के आलमी मार्कों के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद सख्त किया जा रहा है। इसी सिलसिले में मैक्सिकन पुलिस ने कोलंबिया की इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट के साथ टेक्निकल ड्रिल की। हुकाम के मुताबिक इस मशक का मकसद बड़े आलमी इवेंट के दौरान मुमकिन सिक्योरिटी खतरात, दहशतगर्दी के खिदमात और हुजूम के कंट्रोल जैसे चैलेंजेस से निपटने की तैयारी को बेहतर बनाना है। वर्ल्ड कप में लाखों शायकीन की आमद मुतवक्के है, जिसके बाइस सिक्योरिटी इदारे न सिर्फ मकामी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अमरीका में ट्रेन टिकटों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। न्यू जर्सी हुकाम की जानिब से मेडोलैंड्स के मेट लाइफ स्टेडियम आने जाने के लिए खुसूसी ट्रेन सर्विस शुरू की गई है, जिसका किराया $150 मुकर्रर किया गया है, जिस पर शायकीन की जानिब से शदीद तनकीद सामने आ रही है। न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने मेगा इवेंट के दौरान ट्रेन किरायों में इजाफे पर शदीद रद्दअमल देते हुए कहा कि ये बिल्कुल पागलपन और मुज़हका खेज है। आप एक शानदार और वर्ल्ड कप मैच देखने जाना चाहते हैं और फिर आपसे नाजायज तौर पर ज्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं। शायकीन के मुताबिक ये शर्मनाक और अफसोसनाक है और शायकीन का फायदा उठाने के मुतरादिफ है। खेल के नाम पर इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के लिए खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं। इंतजामिया ने इवेंट की इनामी रकम में 9.5% का इजाफा कर दिया। फ्रेंच ओपन में मर्दों और खवातीन सिंगल्स मुकाबलों के फातहीन को बराबर इनाम दिया जाएगा। मुंतजमीन की जानिब से ऐलान के बाद सिंगल्स चैंपियंस को इस साल 28 लाख यूरोज यानी $33 लाख मिलेंगे, जबकि गुज़श्ता साल ये रकम 25 लाख यूरोज के करीब थी। इंतजामिया के मुताबिक डबल्स और मिक्स डबल्स इवेंट्स के इनामात में भी इजाफा किया गया है, जबकि इस बार सिर्फ फातहीन ही नहीं बल्कि इब्तदाई राउंड में बाहर होने वाले खिलाड़ी भी अपनी जेबें भर सकेंगे। इस साल के एडिशन में खिलाड़ियों को फिटनेस ट्रैकर्स पहनने की भी इजाज़त होगी, जबकि इससे कबल ऑस्ट्रेलियन ओपन में खिलाड़ियों को इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी।
टेनिस लेजेंड रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम फातेह सर्बिया के नोवाक जोकोविच एक बार फिर इंजरी के शिकार हैं। स्पेन के कार्लोस अल्काराज के बाद जोकोविच भी अहम इवेंट से बाहर हो गए। सर्बियन स्टार ने मोंटी कार्लोस मास्टर के बाद मैड्रिड ओपन से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। मुंतजमीन का कहना है कि जोकोविच ताहाल कंधे की इंजरी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सके, जिसके बायस उन्होंने टूर्नामेंट में शिरकत न करने का फैसला किया। जोकोविच इससे कबल भी मियामी ओपन और मोंटी कार्लोस मास्टर्स जैसे इवेंट्स में शिरकत नहीं कर सके थे। 38 साल जोकोविच इस वक्त अपनी फिटनेस पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और जल्द वापसी के ख्वाहां हैं। नोवाक जोकोविच अपनी मुकम्मल तवज्जो रिकवरी पर मरकूज किए हुए हैं और उनका हदफ आइंदा माह फ्रेंच ओपन में शरीक होना है, जहां वो ऑल टाइम रिकॉर्ड 25 ग्रैंड स्लैम टाइटल के लिए मैदान में उतरना चाहते हैं। खेल का अहवाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे मेन डेस्क का। शुक्रिया रुमैसा। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।